Hello dear kids, I welcome you all to my English class. I hope you all are good, happy and safe and in a happy and cheerful mood to attend the class. Are you all ready? Are we all ready to attend the class? To start the class? Okay, so let us begin the class. This is our English course book, Wordsworth English Reader, and we are doing chapter number 3, which is Little Red Hen. We are doing lesson 3, which is Little Red Hen. I have already done the reading part, the explanation part, and in my previous video we did the wow words also. So today I will start with word meaning, but before that I will just revise the work which we have done. मैं आज वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करूंगी, लेकिन उसके पहले जो हमने कर लिया है उसको बिल्कुल शॉर्ट में थोड़ा सा रिवीजन करेंगे. आई विल जस्ट टेल यू द स्टोरी इन शॉर्ट, रिवाइज द वाव वर्ड्स वंस अगेन, एंड देन वी विल स्टार्ट द वर्ड मीनिंग. नाउ द स्टोरी इज ऑफ अ लिटिल रेड hen and 3 of her friends. One day the little red hen found some grains of wheat. So she asked her friends, a barking dog, noisy duck, a sleepy cat and a lazy dog. So she asked all 3 of them that who will plant the wheat grains. They all refused. They all said no. They said, I will not do it. So the red hen said, okay, I will plant the grains. She planted the grains. When the grains were ready, they were yellow, they were ripe, then she asked, who will cut the grains? Again, all 3 of them refused. The lazy dog, the sleepy cat and the noisy duck, all 3 of them refused. So the little red hen said, okay, I will cut it and thresh it. So she cut the grains, she threshed the wheat grains with her wings. Then she asked them, who will take the grains to the mill? Again, the 3 of them refused. They said, I will not. Each one of them said, I will not. So little red hen said, okay, I will. Then she took the wheat grains to the mill, and after grinding, then she asked, who will bring it back? Again, they all refused. So she brought the grains, उसको पूरी उसकी grinding करा के उसका जो flour बना वो लेकर के वो घर आ गई. Then she asked, who will bake and make the bread? Again, all 3 of them refused. So the red hen said, okay, I will. She baked and made a bread. Then she asked, okay, who will eat it? Now for eating, all 3 of them were ready. They all said, I will eat, I will eat, I will eat. But the little red hen refused. She said, no, I will eat it all by myself. She did not give it to anyone because they did not help her at all. उन्होंने रेड hen की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी. तो रेड hen ने उनके साथ अपना जो ब्रेड उसने बनाया, she did not share the bread with them. She baked it and ate the bread all by herself. So this is the story. Then we have done the wow words also. The wow words were lazy, L-A-Z-Y, lazy. लेजी मतलब आलसी, जो कोई कुछ काम ना करना चाहे, आलसी.
बस हर समय चाहे कि कोई दूसरा उसका सारा काम कर दे, उससे कुछ ना करना पड़े. देन स्लीपी, SLEEPY, sleepy. Sleepy means one who always wants to sleep, जिसको हमेशा सोने का मन करता रहे, जिसको हमेशा नींद आती रहे. तो sleepy means मतलब always ready to go to sleep, जब बोल दो सोने चले जाए. Noisy, someone who makes lot of noise, जो बहुत शोर करता हो उसे कहते हैं noisy. Then grains, grains और the small seeds of wheat और rice. जैसे जब wheat की फसल होती है, rice की फसल होती है, तो they are not like the way we eat them. वैसे राइस तो ठीक है, राइस को तुम कुक करके खाते हैं, बट देन wheat को और राइस दोनों को पहले उनके जो हस्क होता है, उनकी जो कवरिंग होती है, उस कवरिंग से उनको अलग अलग करना पड़ता है. सो इट इज़ अ वेरी लेंथी प्रोसेस, एंड आफ्टर दैट ओनली it is ready to be eaten. Wheat, you all must be knowing, wheat का मतलब होता है गेहूं. Plant, जैसे मैंने while explaining the lesson तभी भी मैंने पढ़ाया था कि plant means plant भी होता है पौधा, and plant is to plant something, मतलब लगाना. ठीक है, I will plant a sapling. जैसे बोलते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को प्लांट, वाटर प्लांट, तो प्लांट का मतलब लगाना भी होता है, एंड प्लांट माने पौधा भी होता है. आई विल प्लांट द सैपलिंग. हियर द वर्ड प्लांट मीन्स लगाना. ओके. देन रेस्टिंग, रेस्टिंग यू ऑल नो, रेस्टिंग मतलब आराम करना. buried, BURIED, buried means put something underground, किसी चीज को मिट्टी में नीचे दबा देना, that is buried. The wheat plant grew up yellow and ripe. Ripe means पक जाना, पक जाना, that means ready to be eaten. Like जैसे मैंगो है, you say it is raw, अभी कच्चा है, raw means कच्चा, and जब वो पक जाता है तो we say it is ripe, पक गया. Okay. Then thresh, THRESH. थ्रेश का मतलब होता है जो ग्रेन्स होते हैं, दाने, उनको प्लांट से अलग करना. उसके प्लांट से उनका जो छिलका होता है, हस्क होता है, उससे उनको अलग करना. दैट इज थ्रेशिंग. देन बिल, बिल इज अ काइंड ऑफ टूल टू कट समथिंग. टूल मतलब एक औजार. BILL, बिल, बिल मीन्स काटने वाला. जैसे ये बुक में यू कैन सी इट, दिस इज बिल. ओके, क्वेश्चन मार्क की तरह होता है. मिल, MILL, मिल. मिल इज द प्लेस वेयर दिस राइस मिल होती है, शुगर मिल इज देयर, जहाँ पे फ्लावर मिल है, जहाँ पे वीट को लेकर जाते हैं, वीट को पूरा ग्राइंड करके गेहूं बनता है. जहाँ पे राइस मिल है, जहाँ पे राइस की पूरी प्रोसेसिंग होती है, राइस को प्लांट से अलग करना, राइस को उसके छिलके से अलग करना. जैसे शुगर मिल होती है, शुगर मिल में जहाँ गन्ने से शुगर बनती है, चीनी बनती है. ओके. देन नेक्स्ट वाज ग्राइंडिंग, GRINDING, ग्राइंडिंग. ग्राइंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को एकदम पीस के एकदम उसका फाइन पाउडर जैसे बना देना. ग्राइंड करना मीन्स जिसे कहते हैं दाल को ग्राइंड करना, स्टोन्स को ग्राइंड करते हैं. सो ग्राइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को क्रश करके, पीस के, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे उसके पार्टिकल से बहुत फाइन पाउडर जैसा बना देते हैं. दैट इज कॉल्ड ग्राइंडिंग. तो वीट को भी जैसे ग्राइंड करके उसका फ्लावर बन गया, मतलब एकदम फाइन, जैसे देखा है ना गेहूं तो एकदम फाइन पाउडर होता है. FLOUR, flour. Flour is आटा. Wheat flour is आटा, and flour only जैसे बोलते हैं मैदे को. मैदा is also made from wheat only. मैदा भी जो है वो wheat से ही बनता है. Then baked, BAKED, baked. baked का मतलब होता है it is a way of cooking. जैसे नॉर्मली कुकिंग हम लोग गैस पे करते हैं, आग
पे रख करके ऑयल या घी डाल करके करते हैं। बेकिंग में जो ड्राई हीट होती है, ऐसे आग वाली इलेक्ट्रिसिटी की जो हीट होती है उसमें कुक करते हैं। एंड इट रिक्वायर्स वेरी लेस ऑयल, बहुत लेस ऑयल या बहुत सारी चीज़ों में ऑयल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। सो बेकिंग इज अ टाइप ऑफ कुकिंग ओनली। Barked. Bark is the sound of dog. Barking is the sound of dog. जो dog की जो sound होती है, that is barking. Then purred, purring sound. It is the sound of cat. And quacked. Quacked. Quacked is the sound of duck. The sound which duck makes is known as quack, quack, quack. जो duck जो sound करती है उसको बोलते हैं quacked. Okay? So we have done the wow words. Today I will start with word meanings. Lesson 3, Little Red Hen. Word meanings. Word meanings. The first word is noisy. Noisy. Noisy means one who talks too much. मतलब जो बहुत ज़्यादा बात करता है, बहुत ज़्यादा बात करना, बहुत ज़्यादा शोर मचाता है. One who makes lot of noise. ठीक है, one who talks too much को तो इसका मतलब है कि जो बहुत ज़्यादा बात करता है. तो for this we also say talkative. हम कहते हैं दिस पर्सन इज वेरी टॉकेटिव. बहुत टॉकेटिव मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला. नॉइजी का मीनिंग होगा वन हु मेक्स लॉट ऑफ नॉइज, जो बहुत शोर करता है. बट सिंस इन योर बुक द मीनिंग गिवन इज वन हु टॉक्स टू मच, दैट इज वाई आई हैव रिटन दिस मीनिंग ओनली. अदरवाइज द पर्सन, द पीपल हु टॉक टू मच आर नोन एज टॉकेटिव. जो लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं इज वेरी टॉकेटिव. ठीक है, सो दे आर नोन एज टॉकेटिव. नॉइजी मीन्स समवन हु मेक्स लॉट ऑफ नॉइज. नॉइजी डक मीन्स वो डक बहुत ज़्यादा नॉइज करती होगी, बहुत ज़्यादा क्वैक 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 सारे दिन करती रहती होगी. सो दैट इज वाई शी वॉज वेरी नॉइजी, बहुत शोर मचाती थी. ठीक है, शोर मचाने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा बात करना. शोर मचाना मतलब बहुत तरीके से बहुत आवाज़ करना, हल्ला करना, बातचीत करना. ठीक है, बहुत आवाज़ें करना. Then sleepy. Sleepy means ready to go to sleep. Someone who is always ready to go to sleep. हमेशा सोने के लिए ready. ठीक है. B-U-R-I-E-D. Buried. Buried is to put something under ground. जिसे bury कर देना मतलब दबा देना. तो buried is put under the ground. This is buried. Put under the ground. Fourth word is ripe. Ripe is full grown or ready to eat. Full grown मतलब पूरी तरह पका हुआ. These mangoes are ripe. मतलब ये मैंगो पूरी तरह पके हुए हैं. दे आर रेडी टू बी ईटन नाउ. इनको अभी आप खा सकते हैं. सो राइप मीन्स फुल ग्रोन मतलब पूरी तरह जो बड़ा हो चुका हो. एंड रेडी टू ईट जिसको कि हम तुरंत खा सकें. एंड बेरीड इज पुट अंडर द ग्राउंड, जमीन के नीचे गाड़ देना. ठीक है, दैट इज बेरीड. द वर्ड इज बरी. B-U-R-R-Y. This is the bury word.
ओके, एंड buried इज द पास्ट टेंस ऑफ bury. जैसे मैंने एज आई टोल्ड यू, ये जो पूरी स्टोरी है ये ऑलरेडी हो रही है, हो चुकी है. सो इसको पूरा नरेट कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ इसमें. दैट इज वाई जो वर्ड जो पास्ट टेंस के लिए यूज होते हैं वर्ड, दोज वर्ड्स आर यूज्ड हियर. ठीक है. देन grains. Grains are the seeds of wheat, rice, etc. Grains मतलब दाने. जैसे wheat के, rice के जो grains होते हैं, grains मतलब wheat या rice के दाने. So grains is seeds of wheat, rice, etc. जो अंदर जब वीट की जब क्रॉप पूरी पक जाती है तो अंदर सीड्स होते हैं, बाहर उनकी ब्राउन ब्राउन सी कवरिंग होती है, छिलके होते हैं. तो अंदर जो वीट ग्रेन्स होते हैं उसको, जो सीड्स होते हैं वीट के, उसको कहते हैं वीट ग्रेन्स और राइस ग्रेन्स. देन THRESH, थ्रेश. थ्रेश इज, जैसे मैंने बताया, थ्रेशिंग. इट इज अ प्रोसेस. कोई भी क्रॉप होती है, एनी क्रॉप, व्हेन इट इज रेडी देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस. ठीक है. जब कोई भी क्रॉप जब पूरी रेडी हो जाती है तो अलग अलग प्रोसेस होते हैं. उसको कट करना, उसको कट करने के बाद कलेक्ट करके उसको मिल में लेकर जाना, वहाँ पे अलग अलग प्रोसेस से वीट को, मतलब जो भी ग्रेन्स हैं उनको उनके प्लांट से, उसके जो कवरिंग होती है हस्क से, उससे बिल्कुल अलग करते हैं. ठीक है. एंड बहुत सारे प्रोसेस के बाद बिल्कुल उसमें से भी जो ग्रेन्स प्रॉपर नहीं होते हैं उनको अलग अलग करते हैं. एंड ये सारा कुछ प्रोसेस होने के बाद फिर जो है वो फाइनल चीज़ रेडी होती है, जिसको कि जैसे राइस है या वीट है. बहुत सारे लोग वीट सिर्फ खरीदते हैं, वीट खरीद करके फिर उसको घर में अपने से ग्राइंड करवाते हैं, उसका आटा बनवाते हैं. और जो मिल्स होती हैं वहाँ पे वीट को फिर ग्राइंड करके उसके बड़े बड़े बैग्स बनते हैं आटे के. पीपल बाय दोज बैग्स. तो बहुत सारा प्रोसेस होता है. सो थ्रेशिंग इज वन ऑफ द प्रोसेस. थ्रेशिंग में उसको जैसे बहुत जोर जोर से मार मार करके उसको जो ग्रेन्स होते हैं उनको उनके प्लांट से और छिलके से अलग करते हैं. यहाँ तो थोड़ा सा ग्रेन्स होगा तो उसको उसने अपने विंग से थ्रेशिंग करके उसने अलग कर लिया. बट अदरवाइज सबकी मशीन होती है, थ्रेशिंग मशीन है, जहाँ पे मशीन में डालने से जो ग्रेन्स हैं दे सेपरेट फ्रॉम द प्लांट एंड फ्रॉम द हस्क. मतलब जो उसका छिलका होता है, जो प्लांट होता है, उससे वो अलग हो जाते हैं. सो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस to separate the grains from plants by beating. मतलब उनको ऐसे 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 जोर जोर से मार मार करके जो सीड्स होते हैं उनको प्लांट से अलग करना. सो थ्रेशिंग इज टू separate the grains to separate the grains from the plant by beating. मतलब ग्रेन्स को प्लांट से मार मार करके अलग करना. ओके. देन जैसे मैंने ग्राइंडिंग बताया था, ग्राइंडिंग का मीनिंग मैं नहीं लिखवाऊंगी बिकॉज इट इज अ स्लाइटली लॉन्ग मीनिंग, बट जस्ट ऐसे मैं बता रही हूँ. ग्राइंडिंग मीन्स किसी भी चीज को क्रश करके बिल्कुल स्मॉल फाइन पाउडर में उसको बदल देना. ठीक है. टू रिड्यूस टू स्मॉल पार्टिकल्स और पाउडर. जैसे दाल को ग्राइंड करते हैं ना, दाल को ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाया, या स्टोन को ग्राइंड करते हैं. सिमिलरली ग्राइंडिंग मतलब किसी भी चीज को एकदम पीस पीस करके उसको बिल्कुल फाइन छोटे छोटे पार्टिकल्स या बिल्कुल पाउडर में कन्वर्ट कर देना. दैट इज ग्राइंडिंग. देन सेवेंथ इज BILL. बिल इज अ
इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, टूल मतलब कोई औजार जिसको हिंदी में बोलते हैं, एनी इंस्ट्रूमेंट. सो बिल इज अ टूल टू कट. देखा होगा आपने कभी रास्ते वगैरह में वो जो टूल होता है इस शेप का होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, इट इज समथिंग लाइक दिस. ऐसे करके इसका ये हैंडल होता है पकड़ने के लिए, ठीक है. इट इज वेरी शार्प. रास्ते में आपने बहुत बार कई बार देखा होगा जो लेडीज है गांव वगैरह में बैठ के ग्रास काटती रहती हैं, तो वो एक हाथ से जैसे दे होल्ड द ग्रास लाइक दिस, ऐसे ग्रास पकड़ा और दूसरे हाथ में जो बिल रहता है उससे उसको ग्रास को नीचे से ऐसे 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 करके काटते जाती हैं. सो दैट इज बिल. ओके. सो चिल्ड्रन, वी हैव डन द वर्ड मीनिंग. नाउ I will start the comprehension. As always, the first exercise is comprehension only. Let me drink some water. जैसा मैंने आपको बताया है कि in every lesson, the first exercise is comprehension. Why? To check your understanding of the chapter. कि आपको चैप्टर कितना समझ में आया. ओके. Whether you have understood the chapter or not. अगर समझ में नहीं आया होगा then you will not be able to answer the questions. या उसकी जो भी एक्सरसाइजेस हैं, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे. So that is why the first exercise is, in most of the lessons, the first exercise is comprehension. अधिकतर लेसन्स में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या होती है, कॉम्प्रिहेंशन. सो दैट योर नॉलेज इज चेक्ड. मतलब ये चेक कर सके कि जो पूरा लेसन आपने पढ़ा वो लेसन आपको समझ में आया कि नहीं आया. ओके. सो लेट अस स्टार्ट कॉम्प्रिहेंशन. First exercise is comprehension. Now your understanding of the chapter can be checked in any form. वो चाहे fill up the gaps करके हो सकता है कि words दिए हैं, you have to fill in the blanks, or sentences are given, you have to arrange the sentence in proper sequence. ठीक है. और true false हो सकता है. Understanding can be checked in any form. इसका कोई hard and fast rule नहीं है कि ये ऐसे ही हमें चेक करना है. किसी लेसन में हमने देखा true and false was there. In some lesson fill in the blanks were there. Like इस words दिए हुए हैं and you have to complete the sentence with the correct word. True false भी हमने देखा. In this lesson we will check the comprehension, we will check your understanding through question answers. अगर आपको लेसन समझ में आया है, if you know the answers, then only you can answer the questions. अगर पूरा चैप्टर समझ में आया है, if you have understood the story, then you can answer the questions. तभी तो आप आंसर दे पाओगे. अगर स्टोरी ही नहीं मालूम है तो आंसर कैसे दोगे? You cannot give the answer. So in this chapter, question answers are there to check your understanding. Okay? So let us start. Answer the following questions. Answer the following questions. फॉलोइंग का मतलब होता है जो दिए हुए हैं. फॉलोइंग मतलब जो गिवन क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आपको आंसर लिखना है. ठीक है. फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर डिड द लिटिल
रेड hen live? लिटिल रेड hen जो है वो कहाँ रहती थी? Now if you have understood the lesson, सबको अगर लेसन मालूम है, स्टोरी पढ़िए तो बताओगे कि where did the little red hen live? लिटिल रेड hen कहाँ रहती थी? She lived on a farm with a lazy dog, a sleepy cat, and a noisy duck. So where did the little red hen live? The little red hen lived little red hen lived on a farm. The little red hen lived on a farm. कहाँ रहती थी? On a farm with 3 other animals. Who were the 3 other animals? They were a lazy dog, a sleepy cat, and a noisy duck. Now next question is, what did the little red hen find? What did the little red hen find? Little red hen को क्या मिला एक दिन? The little red hen found some grains of wheat. The little red hen found some grains of wheat. Then question number 3 is, who planted, cut and threshed? Who planted, cut and threshed? मतलब किसने उन वीड्स को, वीट ग्रेन्स when they were ripe and yellow, who planted them, who planted, cut and threshed? मतलब उन वीट ग्रेन्स को जो लिटिल रेड हेन को मिले थे, किसने उनको प्लांट किया, किसने उनको कट किया एंड किसने उनको थ्रेश किया? So obviously we all know that all this work was done by the little red hen only. None of her friend helped. The other 3 animals who lived with her, none of them helped the hen. उसके साथ जो और 3 एनिमल्स रहते थे उनमें से और किसी ने भी लिटिल रेड hen की हेल्प नहीं की. So she cut, she planted and she threshed. All the task, जितना भी काम था सारा काम लिटिल रेड hen ने खुद ने किया. So she did all the work. So who planted? Little red hen planted, cut and threshed. Children, today I will stop here only. Otherwise, if I do all the question answers today, हो सकता है आपको याद नहीं रहे. So I will do only 3 question answers today. In my next class, I will first revise these question answers and then we will proceed. So I hope today whatever I have explained, we have done the word meanings. I hope you remember them, you will remember them. उनको आपको learn करना है. So जो word meanings जो मैंने आज कराए and ये 3 question answers. More question answers are there, but today I will do only 3. Your homework is to learn the spellings of wow words. जो wow words लिखवाए हैं उनकी आपको spelling learn करनी है. जो word meanings लिखवाए हैं, you have to learn those word meanings. So I will stop here, children, today.
Thank you for attending the class. Thank you.